first. You can see it over here, how you are going to attempt it. Let's say I have given you a definition of analytical chemistry. It is just a paper, simple paper, which I am showing it to you. It doesn't mean कि आपने यही लिखना है. I'm just telling you the board pattern little bit. So please try to follow it. Because आपको लिखवाने का purpose ही ये है कि आपको board pattern के accordingly चीजों को adjust करना है. So let's say I have given you the first question that you have to define 3 definitions. I think I have given it to you. One is biochem. The other one is in analytical chemistry. So if we see analytical chemistry, you will write down like this. One thing is missing over here, that definition heading is not given. So जो major heading है ना, जैसे analytical chemistry is the major heading, तो उसको आपने हमेशा ऐसे bold letters में लिखना है, capital letters में. A and A जो है ये सारे का सारा it will be capital letter. Then you will underline it, double margins, and in the middle of the paper ना तो बहुत ज्यादा space left की हो, ना ही बहुत कम space left की हो. You have to write down the definition word to word which is in your book, right? Because definition is not acceptable till the moment जब तक आप उसको word by word नहीं लिखेंगे. Then you have example. जो उसके बाद सब हेडिंग है, छोटी हेडिंग है, आपने मार्कर से ही लिखनी है और उसको आपने इस तरीके से नॉर्मली लिखना है. नॉट नीडेड, लाजमी नहीं है कि आप उसको इस तरह लिखें जैसे एनालिटिकल लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में, आप छोटे लेटर्स में भी लिख सकते हो. Then you are going to write down the example or scope, whatever you want to make the heading. So this is the way you are going to. Who is Zara over here? Who is she? Class 9? Anybody knows? No, miss. Okay, so this is the way how you are going to attempt it. इसी तरीके से आपने headings के साथ properly सारा homework करना है. And what is your submission date? क्या date है आपके submit होने की homework? ईमान क्या date मिली है बेटे? वो 1 मिनट मिस. 18th मई से 28th मई. 28th मई. 28 मई को आपने सबमिट कराना है स्कूल में. ये आपके होमवर्क के ऊपर लिखा हुआ, वैसे उन्होंने स्कूल वालों ने कुछ नहीं बताया. कहाँ लिखा हुआ है? वो जो आपके होमवर्क की पिक्चर भेजी हुई है उन्होंने, उस पेपर में ही लिखा हुआ. ओके तो ऑब्वियसली आपने तभी तक कराना होगा, स्कूल वाले और किस तरह बेटे बताएंगे. ओके जी, हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम मोलेक्युलर आयन की. Molecular ion. You can see we have studied last time that any molecule, any atom loses or gain an electron, it becomes an ion. Like या तो ये cation बन जाएगा या फिर ये anion बन जाएगा. And I have told you cat is always positive, so we can say that cation is the ion which is positive and anion is the ion which is negative. सेम अगर हम किसी मॉलिक्यूल से यानी जो मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम बना होगा, वी आर गोइंग टू गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो वो मोलेक्युलर आयन बन जाएगा. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मोलेक्युलर आयन. Number one, it is the smallest particle of an element or smallest particle of an element or compound which can exist independently and shows all the properties of that compound. बिल्कुल जो है वो exist इस तरीके से करता है और properties show करता है. But what is the case of molecular ion? It is formed by gain or loss of electrons by a molecule. It is always, molecule is always neutral, means उसके ऊपर कोई charge नहीं होता. Like CH4, it is always neutral. ना कार्बन के पास कोई एटम कन्वर्ट कर सकता है, ना हाइड्रोजन के पास. इट इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल. बट व्हाट हैपन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो कि किस बात पे डिपेंड करता है? इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ मच इज द number of valence shells are going to be added up or number of valence shell electrons are losing their electrons.
It is formed by the combination of atoms like carbon and hydrogen को जब हम आपस में मिला देते हैं और 4 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के एक एटम से मिलते हैं, they form a combination of methane. Methane molecule बनता है. But what happens in the form of molecular ion? It is formed by the ionization of the molecule. Ionization means breakdown, जिसमें वो dissociate हो जाता है in ions. Molecule, it is a stable unit. कि ये हमेशा स्टेबल रहता है. बट वो जो मोलेकुलर आयन बनता है दैट इज ऑलवेज अ रिएक्टिव स्पीशीज. ऑब्वियसली जब उसके ऊपर चार्ज आ गया है तो वो स्टेबल तो नहीं है. आइदर ये कोशिश करेगा कुछ गेन कर ले, आइदर कोशिश करेगा लूज कर ले, सो दैट इट बिकम्स स्टेबल. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी व्हिच इज फ्री रेडिकल्स. Free radicals 2016 and 17. Mark it on your books. What are free radicals? Free radicals आपको नेम ही इंडिकेट कर रहे हैं that these are the atoms or group of atoms possessing odd number of electrons. Odd means, what is the meaning of odd? Very simple answer. कौन बताएगा what is odd? What is the first odd number we have? 1. 1. 1, 3, 5, 7 मीन्स जो के अनपेयर्ड रहे, जिनकी पेयरिंग नहीं हो सकती. इफ देयर इज 1 तो उसकी पेयरिंग नहीं हो सकती. 2 की पेयरिंग है, 4 की है, 6 की है, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि ऑड नंबर की पेयरिंग हो. तो जहां पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक 8 है, 3 है, 5 है, 7 है, वी विल से इट इज अ फ्री रेडिकल. और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? देखें, बाकी हमने कैटाइन को कहा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एनाइन से कहा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. बट व्हाट हैपेंस ओवर हियर, फ्री रेडिकल्स में क्या होगा? फ्री रेडिकल्स में यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद अ डॉट. आप देख सकते हो इधर ये फॉर एग्जांपल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ऊपर ये देखो डॉट लगा हुआ मोटा सा. दिस इज फ्री रेडिकल एंड दीज आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज. ये बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं. सिमिलरली क्लोराइड रेडिकल एंड देन H3C रेडिकल. दिस इज मिथाइल रेडिकल. ठीक है, मैमा मना हो जाओ, नहीं करो ऐसे. Free radicals are generated by the, how they are formed, are generated by the homolytic. Homolytic is equal breakage of the bond between two atoms when they absorb heat or light energy. Obviously जब भी हमने किसी चीज का बॉन्ड ब्रेक करना है, हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. We need some kind of source. Either it is light energy, either it is heat, either it is मतलब कोई कोल्ड स्टेट में रिएक्शन हो रहा है. जब भी हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये जैसे लेट से मैं बात करूं H3C की, तो इसमें जो ब्रेकेज होगी ना वो इक्वल होगी हमेशा. तो वो क्या करेगा, एक तो इसको रेडिकल बना देगा जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी है. यानी अगर इसके एक मॉलिक्यूल की हम हाली बात करें तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये थाउजेंड्स, मैनी मैनी ऑफ थाउजेंड्स में रिएक्शंस कैरी आउट करा सकता है. ठीक है. A free radical is extremely reactive species as it has a tendency to complete its octet. Means ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की टेंडेंसी रखता है. Table 1.9 shows some of the differences between ions and free radical. Next page. Page number 16. Page number 16. Here it is. ठीक है. Here you can see there is a pink box. Do you know most of the universe exists in the form of plasma, the fourth state of matter. The remaining 3 states are, Fatima कौन सी है बाकी की 3 states? Yes Fatima, what are the 3 states of matter? फातिमा मैं आपसे बात कर रही हूँ बेटे. Yes फातिमा, नो आंसर. बहुत बुरी बात है. अब्दुल रहमान, what are the 3 states of matter? Abdul Rahman, give me the answer.
बस खामोशी से क्लास में बैठे रहा करें। हलीमा, यू टेल मी बेटे। Solid, liquid, and gas. Yes, there are three physical states of matter: solid, liquid, and gas. Very easy answer. I don't know. आप लोग सुन नहीं रहे हैं या जवाब नहीं देना चाहते? What is the issue with you? ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है जब आप लोग बात नहीं सुन रहे हैं एंड एट द एंड यू एक्सपेक्ट कि आपके मार्क्स आए। तो फोर्थ जो स्टेट है दैट इज नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा में सारे के सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं मोस्टली। Both the cationic and anionic molecular ions are present in it. Now, if you see the equation Cl2, this is chlorine. Whose mic is on, bete? Alina, whenever you join the class, please mute yourself. Okay, this is chlorine Cl2, जो कि एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल हमेशा एटम से बनता है और ग्रुप ऑफ एटम से, तो दो क्लोरीन ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। जब इसको सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल। तो हमारे पास दो क्लोराइड रेडिकल आ जाती हैं, ठीक है। Cl और ऊपर ये डॉट इज शोइंग क्लोराइड रेडिकल। And if we take the example of methane, which is CH4, when it is exposed to sunlight, what does we got? Methyl radical. This is H3C, एक हाइड्रोजन निकल जाएगी इसमें से, ये देखें, और उसके ऊपर भी ऐसे डॉट आ जाएगा, दैट इज अ फ्री रेडिकल। द सेम केस इज विद CH3 और एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और ये बहुत हाई लेवल की डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। Now let's see what is the difference between ions and free radicals. Number one, these are ions. These are the atoms which bear some charge. And the same case, these are the atoms that have odd number of electrons. We just have studied the identification of free radical is that they have odd number of electrons. They have unpaired number of electrons. Then number two, they exist in solution or in crystal lattice. Crystal lattice is the same thing which I have showed you in the third chapter. सोडियम क्लोराइड का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, दैट इज अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, जिसमें सोडियम एटम जो पॉजिटिवली चार्ज है दैट इज सराउंडेड बाय नेगेटिव एटम्स और उसी तरह से वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है। But what happens in the form of free radicals, they can exist in solutions as well in the air. Number three, their formation is not affected by the presence of light. Means on ions, आप जितनी मर्जी sunlight add कर लें, they are not going to be break down. But free radicals are always formed in the presence of sunlight. Okay? Sunlight is the एक important condition है. Coming towards next topic, which is types of molecules 2018 as a long question, you can mark it on your books. Now, what is molecule? A molecule, अभी मैंने आपको बताया है, molecule is formed by the chemical combination of atoms. While I was telling you the formation of chlorine, Cl2 कैसे बना है? दो Cl आपस में join करके they are going to be formed Cl2, and we will say it is a molecule. ठीक है? It is the smallest unit of a substance. Now, when we was talking about the substance mixture, तो हमने तब ये पढ़ा था कि molecule किस चीज का part है. It shows all the properties of the substance and can exist independently. There are different types of molecules depending upon the number and types of atoms combining. A few types are discussed over here. Number one, monoatomic molecule. Mono means one. Atomic जिसमें एक ही atom हो. So we will say the molecule consisting of only one atom is called monoatomic molecule. For example, the familiar होते चले जाओगे हमारा जो periodic table है उससे. Inert gases, उधर एक gases की पूरी रो है, उसमें आती हैं helium, neon and argon. All exist independently in atomic form and they are called monoatomic molecules. Means अगर आप इनका वो देखें एटम देखें तो इसमें सिर्फ एक ही एटम है। लाइक हीलियम है, हीलियम को अंडरलाइन करें और इसका फॉर्मूला लिखें कैपिटल H स्मॉल e। कैपिटल H स्मॉल e मींस इसमें सिर्फ एक ही एटम है, दो एटम भी नहीं है। दिस इज existing as a gas and known as monoatomic molecule. Same is for neon, Ne, capital N small e, neon. Then we have argon, capital A small r, argon. They all exist independently in atomic form and they are called monoatomic molecules. Now, if it comes that what are the type of molecules and how many types of molecules, so आप इसी तरीके से सबसे पहले molecule की heading लिखेंगे, define करेंगे इसको, then you are going to
explain. Number 1, monoatomic molecule. Write down the definition and then it is the example. Example की भी आप एक heading बनाओगे and then you will write down helium, neon and argon. Number 2, diatomic molecules. Diatomic, obviously name is indicating 2 atoms. For example, hydrogen, H2, oxygen, O2, chlorine and HCl. And then we have triatomic where 3 atoms are present. Now you can see in example of water, hydrogen के 2 हैं, oxygen का 1 है. So it, while combining it up, it makes 3 molecules, and same is the case with carbon dioxide gas. And when if molecule consists of many atoms, it is called polyatomic molecules. For example, polyatomic भी number 4 type आ जाएगी. For example, methane, sulfuric acid and glucose. A molecule containing same type of atoms is called homoatomic molecules. Means उसमें एक ही तरह के atom हो, like hydrogen, और एक से ज़्यादा exist करते हैं. Ozone and sulfur, phosphorus are the examples of molecules formed by same type of atoms. Then there is another type which is hetero, like H2O हैं तो एक से ज़्यादा atom, but दूसरी तरह के atoms हैं. So we will call it heteroatoms. Moving on the next page, which is page number 17. टीचर ये हेटेरो वाले तो पॉलीएटॉमिक वाले उस तरह नहीं है बिल्कुल. वो भी है लेकिन आगे से उन्होंने और तरह से उसको डिवाइड कर दिया ना. दो तरह से मॉलिक्यूल्स को हमने डिवाइड किया है. एक को हम पॉलीएटॉमिक भी कह सकते हैं और हेटेरोटॉमिक भी कह सकते हैं, बट थोड़ा सा जो है वो चेंज आ जाता है उसमें एक्सप्लेन करने में. ये आपने सारी की सारी टाइप्स लिखनी होंगी इसमें जब भी आपको आएंगी इसी तरह से. फिर टीचर इसमें क्या डिफरेंस होगा? देन इसमें बेटे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम बातें हैं. पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें एक चीज को ना इंटरप्रेट करने के डिफरेंट वेज हैं. आप पहले एटम्स की बेस पे उसको इंटरप्रेट कर रहे हो कि इसमें एक एटम है, 2 एटम है, 3 से ज्यादा है. फिर जो ये लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ में आप टाइप ऑफ एटम बता रहे हो. पहले हमने बताया नंबर, क्वांटिटी कितनी है एटम्स की. फिर जो लास्ट पैराग्राफ है हम उसमें बता रहे हैं कि कौन सी टाइप है एटम की. लाइक हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन से मिलकर बनी है, सेम एटम्स हैं. ठीक है. अब आप उसके बाद अगर कहो हेट्रो मीन्स के अगर हमारे पास वाटर है तो उसमें 2 तरह के हमारे पास एटम्स हैं. नंबर नहीं हम बता रहे, हम 2 टाइप्स बता रहे हैं. तो दिस इज द मेन डिफरेंस. ठीक है मैम? ठीक है. चलिए नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ 1.5. इन द लास्ट 10 मिनट्स मैं आपसे पूछूंगी आप लोगों ने वेट जो मैंने कहे थे डिटरमिन किए या नहीं किए. अच्छा जी. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज डायटोमिक, ट्राइएटोमिक और पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स. तो ये सारे के सारे आप खुद से करके रखेंगे, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम पूछूंगी. आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग एज कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, मोलेकुलर आइन और मॉलिक्यूल. आप लोगों ने इसको क्या करना है, एक रफ पेपर लेना है. जैसे सबसे पहले है ना Na+, आपने ये लिखना है और इसके आगे लिखना है ये क्या है. फॉर एग्जाम्पल Na+, व्हाट इज इट? जल्दी से बताएं क्या है ये? हलीमा. यस, इट इज कैटाइन. इसी तरह से फिर आप लिखोगे Br. इट इज फ्री रेडिकल. इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है. As we have less time, हमने जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर करना है. That's why I am moving on the next topic, which is gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. 3 definitions हम इसमें स्टडी करेंगे. बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा लफ्जों का इधर उधर होना है and you will get it. As we know that all substances are made up of atoms, molecules or formula units. Their masses are referred as, masses means उनका weight. अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटम्स की, तो हम उनको कहेंगे दिस इज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स मोलेकुलर मास एंड फॉर्मूला इज फॉर्मूला मास रिस्पेक्टिवली एंड आर एक्सप्रेस्ड इन AMU. AMU हमने पीछे स्टडी किया था, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. बट दीज masses कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स एज वेल. When masses are expressed in grams, they are termed as gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. सबसे पहले बात आती है ग्राम एटॉमिक मास की. The atomic mass of an element expressed in grams is called gram atomic mass, simple, or gram atom. It is called a mole. आपने जहन में रखना है कि मोल एक नई टर्म है जिसको हमने अब एक्सप्लेन करना है और उसकी बेस बना रहे हैं हम, जिसमें ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलेकुलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे. 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन. अब ये हाइड्रोजन का वेट है
1.208 मतलब 1.008 ग्राम, और ये इक्वल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के। ठीक है, उसका जितना किसी भी एटम का जितना भी वेट है वो इक्वल होता है उसके 1 मोल के। ये चीजें आपने ऐसे ही याद करनी है। देन वी हैव 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम्स, तो ये इसके 1 मोल के इक्वल होगा। It means that 1 gram atom of different elements has different masses. Same is the case gram molecular mass. The molecular mass of an element or a compound expressed in grams is known as gram molecular mass or gram molecule. It is ये जो also मोल की called अपनी a कोई mole. वैल्यू है? मोल की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। मोल हर एक के लिए डिफर करेगा, उसके आगे हम इसको रिप्रेजेंट जरूर करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से, बट मोल एज सच डजंट हैव एनी वैल्यू। ठीक है, नंबर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। पहले हमने एटम की बात की, एटम का वेट कितना था हाइड्रोजन का? हाउ मच इज द वेट? ऊपर देखें और मुझे बताएं कितना वेट है। 1.008। 008, वो था सिर्फ एक हाइड्रोजन। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। दो एटम जब मिल जाते हैं हाइड्रोजन के, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही है, तो हम H2 से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन का वेट है 1, जब हमने एक और हाइड्रोजन एड अप कर दिया तो कितना वेट हो गया? कितना वेट हो गया बेटे? 2 ग्राम्स हो गया। तो 2 ग्राम्स जो है वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इट इज नॉट एटम, it is 1 mole of hydrogen molecule. Be very careful, molecule formula and what is the difference between atom. ठीक है, now coming towards 1 gram mole of water. water का कैसे बना है ये, किसी को पता है? how we can get H2O weight? कैसे? ईमान, हलीमा, anyone? टीचर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे। I am saying we are getting the weight of water is equal to 18 grams. तो कैसे हमारे पास 18 आया? हमें कैसे पता लगा क्योंकि H2O is टीचर 18? हाइड्रोजन के 1 एटम में सॉरी हाइड्रोजन 2 टाइम्स है तो 2 हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो Oxygen, 16 है, तो 16 प्लस शाबाश, 2 very good, 18। very good, very good. Halima told us that the weight of hydrogen, you can see it is molecule of hydrogen. So its weight is 2 plus oxygen weight is 16. So when we are going to add it up, we will get 18 grams and it is 1 mole of water. Similarly, H2SO4. H2SO4 का हम total weight जो है that is 98 gram. How it is? 2 for hydrogen, sulfur is 32, oxygen is 16. 16 multiplied by 4 is equal to 64. ठीक है? So we will get 98 grams. And we can say that it is 1 mole of sulfuric acid. Then same is case gram formula mass. Formula mass आ जाएगा, so we are going to concern with more than one molecule. The formula mass of an ionic compound expressed in grams. Formula mass जो है वो हमेशा ionic compounds का होता है जिनके ऊपर चार्ज आ जाता है, and we call it gram formula. और इसको भी हम मोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, इट इज फॉर्म्ड Na plus Cl नेगेटिव से बनता है। इसका वेट है, सोडियम इज Na is 23 grams and chloride is 35.5. When we are going to add it up, we get 58.5 grams and it is equal to 1 mole of sodium chloride. टीचर The same case calcium carbonate. जी बेटे? 1 ग्राम 1 मोल के इक्वल है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है मैम। यस उसके आगे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं कि वो मॉलिक्यूलर मास है या वो क्या है। टीचर जी बेटे? कैन वी से Yes, Nima? मोल फॉर द ग्राम इंस्टेड ऑफ ग्राम? Yes, you can say, but आपने अगर प्रॉपरली जैसे let's say if it comes in your exam gram molecular mass, तो फिर आपने इसी तरीके से लिखना है। This is fine that 1 gram is equivalent to 1 mole. This is perfectly fine. ठीक है? ओके। Okay, so gram formula mass similarly you can find it out of calcium carbonate. Calcium का weight देखें, कार्बन का देखें, ऑक्सीजन का देखें, add it up and you will get 1 mole of calcium carbonate. All right. लेकिन आप ये चीज फॉरगेट ना कीजिए कि 1 ग्राम कैसे बन रहा है। 1 ग्राम उसके सारे के सारे मैस को टोटल करके बन रहा है।
जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की मैं बात करूं तो इसका टोटल वेट है 100 ग्राम्स. दिस इज गोइंग टू बी 1 मोल. वी कांट से 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नो, हमने उसके 100 ग्राम्स लेंगे तो वो 1 मोल होगा. ये चीज आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके क्लियर होगी. प्रैक्टिकली भी हम इस चीज को परफॉर्म करते हैं. Now coming towards Avogadro's number and mole. Avogadro's number 2015 and 16. In chemistry, we deal with substances which are composed of atoms, molecules, or formula units. The counting of these particles is not possible for the chemist. Means मैंने आपको जैसे example दी थी. If I say that this laptop has how many number of molecules, we don't know. तो हम क्या करते हैं, किसी चीज के साथ उसको फाइनली मल्टीप्लाई कर देते हैं कि let's say this is the weight of laptop and we are going to multiply with Avogadro's number. So this is the possibility that this might be the answer. This much number of moles, this much number of molecules will be present in it. Okay? That's why the concept of Avogadro's number facilitated नेक्स्ट पेज पे आप लोग चले जाओ. Page number 18. So concept of Avogadro's number facilitated the counting of particles contained in the given mass of a substance. Now what is Avogadro's number? This is written. Avogadro's number is a collection of 6.02 into 10 raised to the power 23 particles. This is the amount of Avogadro's number. ठीक है? यानी Avogadro's number is equal to 6.02 into 10 raised to the power 23 particles, atoms, molecules, कुछ भी हो सकता है. And it is always represented by Na, capital N और उसके साथ इस तरीके से A. This one represents the Avogadro's number. Hence, the 6.02 into 10 raised to the power 23 number of atoms, molecules, or formula in unit is called Avogadro's number. That is equivalent to 1 mole of respective substance. ठीक है? It, in simple words, this amount 6.02 particles are equal to 1 mole as 12 eggs are equal to 1 dozen. जैसे हमें पता है ना 1 kg में तो आप काउंट नहीं कर सकते, बट इन 1 डजन यू कैन काउंट के 12 नंबर ही होगा. लाइक इफ वी परचेज बनानास तो हम ये नहीं कहते कि 1 किलो 1 kg बनानास दे दो. वी ऑलवेज सेड 1 डजन एग्स. उसके अलावा और क्या चीज डजन में होती है, क्या होती है? एग्स. तो हमें पता है ये एक फिगर है, जैसे पता है 1 दर्जन में हमें 12 ही वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी मिलेगी. सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो 6.02 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स हैं वो इक्वल है 1 मोल के. अब आगे उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ पीछे से ही इंटरप्रेट की हैं. नंबर 1, 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms of carbon are equivalent to 1 mole of carbon. ठीक है, टीचर एटम्स की बात की है. जी बेटा, ये एक दफा दोबारा बता दें. ये आप कह रही हैं कि ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ये इक्वल है 1 मोल के. तो ये इक्वल 1 ग्राम के भी है ना? हाँ जी 1 ग्राम के भी है, लेकिन आपने इसको इस टाइम ग्राम से नहीं मैच करना, क्योंकि आप देखो अगर मैं आपको कह रही हूँ लेट्स से मैं आपको दे रही हूँ सोडियम क्लोराइड और मैं कह रही हूँ उसका 1 ग्राम क्या है, आप मुझे क्या आंसर दोगे? सोडियम क्लोराइड. व्हाट इज द 1 ग्राम? टीचर 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5. यस, इट इज 58.5 ग्राम्स, जो कि उसका वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेइंग बैलेंस पे. ये 1 ग्राम के इक्वल भी है और ये 1 मोल भी है. हम 1 ग्राम बार बार नहीं करेंगे, हम कहेंगे दिस इज 1 मोल. ठीक है, 58.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 1 मोल. टीचर साइंटिफिक टर्म इस वजह से. हाँ जी, ओके. हलीमा को कैसे पता है? हलीमा ने याद किया हुआ ये चैप्टर, आई एम प्रीटी श्योर. नो टीचर, याद नहीं किया हुआ, एक दफा समझा हुआ है. अभी तो टेस्ट भी नहीं दिया है इसका एकेडमी में. लेकिन मैम इट डजंट मीन के उसने एकेडमी से हलीमा ने पढ़ा है, बट थोड़ा सा ये है कि आप लोग अगर गो थ्रू, अभी पीछे लिखा हुआ है 58.5 ग्राम्स, अगर आप इसको याद कर लोगी और मैं ये क्वेश्चन साइड पे लिख लूं कि दैट हलीमा इज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन व्हेन यू विल बी एबल टू लर्न इट है द चैप्टर, तो आप भी ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना. इसीलिए मैं कहती हूँ कि साथ साथ पढ़ लें इसको एक मरतबा.
ये सर ने है ना हमें वहाँ पे काफी सारे एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर, ये जो बुक में गिवन है ना पेज नंबर 10 पे, इस ठीक है, एक मिनट मुझे ये जरा यहाँ तक फिनिश करने दें. Then we have 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of water are equivalent to 1 mole of water. Same is the case, formula unit आ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल आ जाएगी. They are equivalent to 1 mole of sodium chloride. Till here हमने पढ़ना है. आगे आप लोगों ने यहाँ तक इसको अच्छी तरह से याद करके अब आना है. There is a possibility कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर फिनिश करवा कर आपसे ओरल टेस्ट ले लूं. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको साथ साथ याद करें. नाउ लेट मी टेक योर अटेंडेंस. हु इज प्रेजेंट टुडे?